नमस्कार, मैं प्रोफेसर डॉक्टर विजया लक्ष्मी चौहान हूँ। आई एम द फॉर्मर डीन स्टूडेंट वेलफेयर and professor and head department of psychology, founder director for UGC Center for Women Studies, and so many other things I'm heading. I have my family, my husband, my 2 sons at present, and previously when joint family was there, the other relatives, in-laws were there. I am now former, I'm retired personnel and looking after my NGO, that is Academy of Wellbeing Society, because my purpose of life is to share and care, and accordingly I have started my NGO, that is Academy of Wellbeing Society, to work for the welfare in the society. As far as my educational career is concerned, I am a first gold medalist of Rajasthan University in psychology, and I started psychology in Rajasthan University as we have done our previous with philosophy department, but under the efforts of myself and other fellow students, we started independent department of psychology. So in final year we were in the psychology department of Rajasthan University, and I am the first gold medalist of that university. And after that, I was the first assistant professor of psychology from my own university in the Department of Psychology. I worked there from 1972 to 74, and then I resigned because I got married at Udaipur. So I was to come to Udaipur, so I resigned from that university, and then my efforts started to start psychology in Government Mira Girls College at Udaipur. So that year I was underage because I started my career at the age of 20. So that year I was underage because of 20. So the next year I came to the Mira Girls College and started my Udaipur journey. During that period, I came to my in-laws' place. We have our family station in within the boundaries of Udaipur. So we were living there. There, my grandmother-in-law, who expired at the age of 105, was my role model in my in-laws' family. She was the first wife of the first engineer of the Mewar state. So she was having a wider vision, and she only motivated me to work, because when I started my career from Jaipur Rajasthan University in 1972, that time I was at Jaipur, but when I came here in Udaipur, my other family members were not liking to work, to go outside, as in Rajput families there is so much restrictions. But only because of my grandmother-in-law, I started my teaching career at Udaipur, and in this way, till up to 2011, I was working the 2 years at the Mira Girls College. After that, I have been selected in Mohanlal Sukhadia University as an assistant professor. After that, I become associate professor. After that, I become the professor, and finally, I was assigned various responsibilities in the university. So the life journey is so long, and so many problems come across, but I was able to solve those problems because of my own potentiality, because of my own rearing and caring during my childhood. That has motivated me to work here, and I'm so happy that I have a great self-satisfaction, and that self-satisfaction gives me a forward thinking, a forward vision. That is my personal story. I was the daughter of a family that is called Soda family of Khetadi. I born there, and having uncles, aunties, and my father was a doctor. He was a gold medalist from Calcutta University. My brother was gold medalist from the MREC, Engineering College, Jaipur, and other members were also there. But for me, my father was the person who motivated me to
have the higher education as well as to go for job, because the female members of the society, the female members of my family was not interested to give me education, as the Rajput ladies are so weak in that sense that they don't allow their daughters to go out because the parda pratha. There are so many things popular in the society, so they were not interested. They don't want me to. But my father has brought me like this. He used to take me in outings. So he is my role model. My mother was always motivating, but the other family members in the joint family system were restricting her to openly support me. So my father is the role model in my parents' side, but my mother was internally supporting, but externally she was not able to, because that time it was difficult for a lady to say something outspokenly. So that is the very important part I would like to say. So my personality from the childhood was open personality, because from the very beginning I saw my father that he is helping everyone. He is giving jobs to the downtrodden. He was looking after the animals because he was a surgeon of animal husbandry. So I saw that he is working for others. Generally, we always consider a man excellent and significant for the society who helps others. So the basic characteristics of my journey has come forward from my father's working. He is my role model throughout the life. But my mother and father both are very important for me, and the other members also, but other members will always try to hinder my development. So I give credit to my parent father permanently and then mother internally. So their personality has influenced me so effectively that I was able to reach up to this level, and I pray God that give peace to their soul wherever they are. To reach at this level is not easy, and especially at that time when I passed out in 1972. So in 70 I entered in the graduation, but during my school time or college time I was doing so leadership work in the college, in the school as well as in college, because I was the part of the NCC, NSS and other extracurricular activities. But every time there is a hindrance, there is a struggle, there is a barrier. No, you will not go there. You are a girl, you should not work, you should not talk to men, your counterpart. Because from the early time there is so much of gender discrimination in the family itself, because they always treat male member is the earning member, the breadwinner, whereas the female is considered as the second citizen. Not only second citizen, downtrodden, because she will go to दूसरे घर में जाएगी, पराया धन, she is the पराया धन. So these things also happened with me, but I never reacted to for them, and I always try to be confident in whatever I am doing, not criticizing others, but trying to influence with my behavior. I also consider the behavioral domain is the important aspect of life that modify the others' behavior also. So I was always an image conscious personality, and that has made me like this. In the society there is so much gender discrimination, but I want to submit here that God has made only two castes. One is male and other is female, and both of them are complementary to each other. If they are complementary to each other, so they have to respect each other. But in our socialization process, our families are not treating them as a equal partner. They are treating them as a below level, because they are parayadhan and the male is breadwinner. That's why they have the discrimination. So I would like here to say that the women should herself think that no, I am the human being, because everyone is human being. They are gendered. There is a biological difference, but psychologically they are same, because psychologically they have the cognitive power, they have the affective power, they have the cognitive power. So man is also having all these three components of the behavior, and female is also. Then why there is a discrimination? But God has given emotional power to the women. That's why she is able to deliver the child. So the power, the physical power always is with the man, and the emotional power is with the female. But both of them are complementary to each other. That has to be submission of myself to each one of the society, that respect each other.
If you are respecting each other, then don't make egos, because egos are the very disturbing element. We should pray God for have the balance between Gyan, Bhav and Karma. There are three components of Vedic Sanskriti, that is Gyan, Bhav or Karma. If we are able to maintain the balance between this, then we are able to get the victory in our deliberations, because human relationships are very important, social relations are very important. And those who are not involved in those processes, they are become the mentally ill personality. So my submission here is, if we want to have a peace in the family, respect each other. Don't make any issues. Family is a place where everyone can express their emotions, but there should be a limit of that emotional expression. There should be no anger. These are the normal emotional elements, but respect each other by avoiding, by tolerating. I'm not talking about the tolerance up to the high level. It is the normal level. The situation should not come. If one is angry, other should be silent. If the other is angry, the next person should be silent. If they are able to balance between them, then only we are able to go away from this divorce system of modern era. In life is a continuous journey, and making adjustment in life is not an easy way. In life, we have some role models whom we always follow them. For me, all these scientists and all the learned personalities, all the politicians, they are there. But every individual is following their family values. If we are able to follow the family values for the interpersonal relationship, this interpersonal relationship will be the power of yourself. Because there is somebody in the family who is looking after you, who is caring you, who is sacrificing for you. And if you are not able to understand, then he is not a role model. So therefore, everybody should find out their own role model from anywhere, from the books, from the personality who are already there. But my summation for myself, I feel my father, mother, and my grandmother-in-law, they are my role models. They have given me the chance to flourish in the world of competition, and where I was able to stood because of my self-confidence, because of my tolerance power, because of my openness, because of my sound emotionality, because of my own emotional control. I was able to get the success, because without emotional control, you will not able to follow the normal life. As I told you that adjustment is life and life is adjustment. If you want to have a happy life, one has to adjust the people around you, because society is the important parameter of your development. If society is not with you, your family members are not with you, charity begins from home. If you are not good at home, you will never be good for anywhere in any society or any corporate life or anywhere. So understand, first you audit yourself, understand yourself. Self-auditing is very important. If we are normal personalities, we are able to analyze ourselves, what are our abilities, how we can control, how we can manage ourselves. This management techniques has to be learned from the family, from your surroundings, and from books also, but from experience is the biggest solution for this problem. So self-management is the important parameter of life. That is from your arousal of self through your family values, through your family members, or the significant personality who guide you, who solve your problems. They are the significant person, they are the role models for everyone in this society. जीवन एक सतत प्रक्रिया का नाम है. इस निरंतरता के अंतर्गत बहाव बहुत आते हैं, अवरोध बहुत आते हैं, लेकिन हमें यह निर्णय करना पड़ता है कि हमें क्या करना है. अगर हम अपनी एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंगली काम करेंगे तो हमें खुशी होगी, और कॉर्पोरेट लाइफ में जाकर आपकी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी, आपकी पहचान ज़्यादा होगी. यू विल बी नोन बाय योर ओन वर्क, बिकॉज वर्क वैल्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू आर गोइंग इन कॉर्पोरेट लाइफ, because there are many areas, you can go in academics, you can go in any other work, or in corporate or industry, or your self work. But if you are going to the corporate life, the need is to know yourself, what you are, what is your level, what is your aptitude. Are you going towards your aptitude? Then you will get success and you will feeling the satisfaction. If you are not going simply to earn, everybody can earn by any way.
But if you are going to earn through your aptitude, through your knowledge, then the self-satisfaction will be high, and that not only for you, but for the corporate for whom you are working, they will also get the high production, and you will also get, and this will lead to the motivation for the further endurances. तो इसलिए आवश्यकता है कि जो कॉर्पोरेट लाइफ में जाना चाहते हैं उन्हें अपना मूल्यांकन, सेल्फ ऑडिटिंग करना, मूल्यांकन करना चाहिए, और मूल्यांकन करने के बाद ये ज्ञात होना चाहिए कि उन्हें किन किन चीज़ों की और आकर्षण है, वो किस और जा सकते हैं, और उस और जाने से उन्हें जो फायदा होगा न केवल वो उनके लिए अपितु उनकी इंडस्ट्री के लिए भी होगा। क्योंकि अभी ऐसी मारा मारी है इस प्रतिस्पर्धाई दुनिया में, इतना कंपटीशन है, इतना कंज्यूमरिज्म है कि हम उन चीज़ों को तो, अपनी चीज़ों को तो भूल जाते हैं, हम सेल्फ को तो भूल जाते हैं। वी आर ट्राइंग टू प्लीज अदर्स, दैट इज नॉट द सेटिस्फेक्शन। वी शुड वर्क कि हम अपने सेल्फ को अराउज करके उस सेल्फ से हम परसीव करें और हम देखें कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या वर्क वैल्यूज है, किस डायरेक्शन में हमें जाना है, किस टाइप की उसमें जाना है। इफ यू आर एबल, देन द कॉन्फिडेंस विच यू विल डेवलप विल मोटिवेट यू टू आर्ग्यू विद योर सीनियर्स और टू आर्ग्यू विद योर जूनियर्स, और आप उनको अच्छे से समझा सकेंगे। क्योंकि समझना, अंडरस्टैंडिंग करना आज की महती आवश्यकता है। अगर आप में समझ है तो आपके बॉसेस के साथ भी रिलेशंस अच्छे होंगे, आपके जूनियर्स के साथ भी रिलेशंस होंगे, आप सुपीरियर्स और जूनियर्स में आप एक अच्छा मैनेजमेंट करेंगे और अच्छा आप उत्पादकता की ओर अग्रसर होंगे। इसलिए जो व्यक्तिगत समस्याएं आती हैं किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी कॉर्पोरेट लाइफ में, जो इंटरपर्सनल रिलेशंस टेंस हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाते हैं और बहुत ही गंभीरता की ओर ले जाते हैं, विभिन्न प्रकार के मानसिक द्वंद्वों की ओर चले जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आवश्यक है कि आप अपना नियंत्रण स्वयं स्थापित करें और स्वयं की अंडरस्टैंडिंग से दूसरों को, क्योंकि जो सेल्फ होता है वही एनालाइज करता है कि हम जो है दूसरा भी वैसा, ऐसा नहीं होता है। हमें उन व्यक्तिगत विभिन्नताओं को, उन इंडिविजुअल डिफरेंसेस को पर्सनालिटी में जो व्याप्त होती हैं उनकी ओर देखना होता है और उसके हिसाब से हमें सॉल्यूशंस देने होते हैं। कॉर्पोरेट लाइफ में हम लोग समझते नहीं हैं उन चीज़ों को कि दूसरा बंदा है, उसके अलग वर्क वैल्यूज है, उसकी फैमिली वैल्यूज अलग है, उसका सोच अलग है। तो जो भी सुपीरियर्स है उनको उनकी पर्सनालिटी को एनालाइज करके, उनकी पर्सनालिटी की कॉम्पिटेंसी के अकॉर्डिंगली अगर उनको काम असाइन किया जाता है तो वो निश्चित रूप से आपके लिए भी अच्छा है और उस व्यक्ति के लिए भी अच्छा है। अगर उनके अनुकूल काम नहीं दिया गया तो आपको भी कुछ नहीं मिलेगा और उनको भी कुछ नहीं मिलेगा, और अल्टीमेटली वो आपके लिए, कॉर्पोरेट लाइफ के लिए, इंडस्ट्री के लिए समस्या हो जाएगी और उस समस्या का समाधान करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो आपके जो एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट को खराब करेगा। इसलिए आवश्यकता है कि हम अपने सेल्फ को समझें, दूसरे के सेल्फ को समझें और इंडस्ट्री की वर्क वैल्यूज़ को समझें कि इंडस्ट्री की जो वैल्यूज़ हैं वो क्या है, हमारी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या है और ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्पिटेंसी में हम कहाँ फिट होते हैं। उस हिसाब से अगर हम जाते हैं तो हमें भी अच्छा लगेगा और कॉर्पोरेट के लिए भी अच्छा है। इसलिए आवश्यकता है कि उन कौशलों को हम अंगीकृत करें जिन कौशलों के माध्यम से स्वशांति हो और प्रशांति भी हो सके और उत्पादकता की ओर बढ़ सके और आपसी संबंध, इंटरपर्सनल रिलेशंस भी अच्छे बन सके। क्योंकि ये इंटरपर्सनल रिलेशंस तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल रिलेशनशिप, और एक होता है इंडिविजुअल टू ग्रुप इंटरेक्शन, और तीसरा होता है ग्रुप टू ग्रुप इंटरेक्शन। इन तीनों इंटरेक्शंस की अलग अलग तरह की व्याधियां हैं, समस्याएं हैं। अगर व्यक्ति व्यक्ति से मिल रहा है तो उन्हें एक दूसरे को समझने की जरूरत है, और अगर व्यक्ति समूह से मिल रहा है तो उनके परसेप्शन, उनकी वैल्यूज को समझना है। और अगर समूह से, और ये ऑलरेडी हर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर बनी होती है और ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू होती है, और उसके अकॉर्डिंगली अगर हम कुछ काम करते हैं तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। इसलिए उन न्यू मेंबर्स को जो इस ओर आ रहे हैं उनको इन सब बातों का मूल्यांकन करके ही अपनी कॉर्पोरेट लाइफ में जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप उस लाइफ के अनुकूल नहीं हैं तो आप हताश होंगे, दुखी होंगे, प्रताड़ित होंगे और अंततोगत्वा आप न तो उस संस्थान के लिए अच्छे होंगे, न अपने लिए अच्छे होंगे, और आप असामान्य व्यवहार की ओर अग्रेसित हो जाएंगे। इसलिए जो भी व्यक्ति इन चीज़ों में आना चाहता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आना चाहता है, उसकी ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज को समझे, अपने वैल्यूज को समझे, उनमें अगर समन्वय है तो हमें सार्थक संबंधों की ओर जाएंगे और हमें सफलता मिलेगी। परिवार के अंतर्गत जब हम छोटे से बड़े होते हैं तो उस यात्रा के अंदर बहुत लोग हमारे संदर्भ में आते हैं, हम उनसे अंतर्क्रिया करते हैं, कुछ हंसाते हैं, कुछ रुलाते हैं और कुछ आगे बढ़ने का संदेश भी देते हैं।
मैं प्रारंभ से ही एक बहुत प्यारी सी बच्ची अपने परिवार में रही, अपने समाज में रही, और मेरे में लीडरशिप क्वालिटी शायद शुरू से थी। इसलिए मुझे हमेशा आकर्षण का केंद्र माना गया। जहाँ भी मैं जाती तो मेरी उपस्थिति सारगर्भित होती, और उस सारगर्भितता से क्या होता कि मुझे पुनर्बलन मिलता, मुझे रिइंफोर्समेंट मिलता, तो मैं और आगे बढ़ती जाती। और मेरे में जो लीडरशिप में शायद इननेट थी वो करेक्टरिस्टिक, बिकॉज माई फादर वॉज ऑल्सो ए लीडर इन हिज प्रोफेशन, लाइक दैट आई ऑल्सो गॉट दैट इंस्पिरेशन। तो मुझे लगता है कि जेनेटिकली आई गॉट दैट लीडरशिप, और उस लीडरशिप का मॉडिफिकेशन जैसे जैसे छोटे से बड़ी हुई तो हर जगह मुझे मिला, मुझे सम्मान मिला, मुझे प्यार मिला, और मेरी बातों को हमेशा महत्व दिया गया। मैं बहुत छोटी थी तब से ही मैंने 14 साल की उम्र में 10th पास कर लिया था। उन दिनों बड़ा मुश्किल होता था। 14 से पहले मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ बदलवानी पड़ी, तब जाके मैं 10th में अपीयर हो सकी, और इस तरह से मैं आगे चलती गई। हंसना हंसाना, मैं प्रारंभ से एक अनुशासित व्यक्तित्व के रूप में जानी जाती थी। बचपन में भी जो कहा उसको मैंने ओबे किया, जो मुझे कराना है उसके लिए भी मैंने अनुनय विनय करी। ये नहीं कि मैं जबरदस्ती या नाराज होकर या गुस्सा होकर या बर्तन फेंक या किताब फेंकी, नहीं। मुझे पढ़ने लिखने का शौक था, मुझे काम सीखने का शौक था। मैंने पढ़ाई लिखाई भी करी, किचन स्किल्स भी सीखी, उसके साथ ही साथ दूसरी जो फीमेल को पुराने ज़माने में कढ़ाई, बुनाई, तुरपाई जो भी होते हैं काम, वो सारे मैंने, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था। मेरी होलिस्टिक पर्सनैलिटी रही, और उस होलिस्टिक पर्सनैलिटी ने मेरे परिवार का बहुत हाथ दिया। हर व्यक्ति मुझे कुछ सिखाना चाहता, मैं सीख लेती थी, क्योंकि मेरे में वो ईगरनेस थी टू लर्न। मैं सीखना चाहती थी, क्योंकि मैं कभी अपना समय व्यर्थ गंवाती नहीं थी। बचपन से मेरी आदत रही कि मैंने कभी भी किसी भी चीज़ में व्यर्थ अपना समय नहीं गंवाया। हमेशा उसका एक सिग्निफिकेंस देखती थी कि मैंने ये काम किया तो उसका क्या फ़ायदा होगा मेरे लिए भी और परिवार के लिए भी या अन्य लोगों के लिए। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि बचपन बहुत सुंदर होना चाहिए। बचपन की अनुभूतियाँ आपको आगे तक ले जाती हैं। इसलिए मैं कहना खास तौर से यहाँ चाहूँगी, माता पिता को अपने बच्चों का सामाजिकरण, सोशलाइजेशन बहुत तरीके से करना चाहिए। उन्हें सम्मान देना चाहिए। उनको अगर हम इज्जत देते हैं तो बच्चे भी इज्जत करते हैं। लेकिन आज के ज़माने में क्या हो गया है, इतनी प्रतिस्पर्धा हो गई, बच्चों को हर वक्त पढ़ो पढ़ो कहते हैं, जबकि पढ़ने की क्षमता है या नहीं है, लेकिन हम उनके इंटरेस्ट के एरिया में नहीं भेजते। हम कहीं इधर भेजते हैं, कभी उधर भेजते हैं। हम जो कुछ काम हम स्वयं नहीं कर पाए, उन कामों को हम उन बच्चों पे थोपते हैं, और अंततोगत्वा वो हताश होकर, निराश होकर पुनः अपने स्थान पर आ जाते हैं, और विभिन्न प्रकार की मानसिक बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। और फिर हम उन्हें डॉक्टरों को फिजिकल चेकअप के ले जाते हैं, मेंटल चेकअप के ले जाते हैं, लेकिन उनका व्यक्तित्व हम क्षीण कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। इसलिए मेरा विशेष रूप से सभी लोगों से ये कहना है कि पारिवारिक संदर्भों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। हम बच्चे का सामाजिकरण कैसे कर रहे हैं? अगर हम प्रेम से कर रहे हैं तो बच्चा भी प्रेम का होगा। अगर हम लड़ाई झगड़े करके चल रहे हैं तो उसका व्यक्तित्व भी अग्रेसिव होगा। इसलिए आवश्यकता है कि हम पेरेंटिंग पर विशेष ध्यान दें। पहले के ज़माने में संयुक्त परिवार प्रथा थी, उसमें हमारे चेक्स एंड बैलेंसेस थे। हम गलत करते थे, उससे हमको डर था कि हम गलत नहीं कर लें, क्योंकि दूसरे लोग बाहर देखते थे, आके उसे समझाते थे। इसलिए हमें बचपन पर और पेरेंटिंग पर बहुत ध्यान देना चाहिए। लाइफ में दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो है एजुकेशन, शिक्षा, और दूसरा है अनुभव। शिक्षा क्या है? शिक्षा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन और परिमार्जन, इट इज अ चेंज एंड मॉडिफिकेशन इन द बिहेवियर। ये व्यवहार में परिवर्तन और परिमार्जन शिक्षा के माध्यम से आता है, लेकिन उस शिक्षा को ग्रहण करते हुए हमें बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि अधिगम होता है, लर्निंग होता है। और लर्निंग क्या है? इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। जब हम सीखते हैं तो स्टिमुलस होता है, रिस्पॉन्स होता है, उनमें जो इंटरेक्शन होता है दैट गिव्स अस एक्सपीरियंस, वो हमें अनुभव देता है, और उस अनुभव से ही हमें आगे बढ़ने की क्षमता का विकास होता है। वी बिकम पोटेंशियल, हैविंग पोटेंशियल बाय दिस एक्सपीरियंस। और इस एक्सपीरियंस के माध्यम से हम आगे क्या करना है, क्या प्लान करना उसकी मैं आपको बताना चाहूँगी मेरे अपने अनुभव के आधार पर, अपने शिक्षा के आधार पर, कि शिक्षा के क्षेत्र में मैं गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ राजस्थान की। लेकिन उसके बाद जब मैं जब शिक्षिका हो गई या असिस्टेंट प्रोफेसर हो गई, उस दौरान मैंने बहुत सारे
इनोवेशंस किए और उन इनोवेशंस में मैंने विमेन स्टडीज़ क्लब बनाया, महिला अध्ययन का एक क्लब बनाया। महिला अध्ययन का क्लब बनाने के बाद मैंने महिला अध्ययन केंद्र में यूजीसी से लेके आई, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर औरत और आदमी में भेद कम करना है तो हमें को एजुकेशन को एनकरेज करना चाहिए और लड़कों और लड़कियों में समन्वय स्थापित करने के लिए, जो लड़कियों में पहले हिचक होती थी, क्योंकि उदयपुर एक ऐसा प्रांत है जहाँ आदिवासी बच्चियाँ, ग्रामीण बच्चियाँ ज़्यादा होती है, तो जो हिचक है उस हिचक को कम करने के लिए ये आवश्यकता मैंने अनुभव की और मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से सहायता लेकर मैंने सेंटर फॉर वीमेन स्टडीज़ की महिला एमएल सुखाड़े यूनिवर्सिटी में स्थापना की। तो उसके बाद यूजीसी से जब फंडिंग मिला तो मैंने उसका नाम यूजीसी सेंटर फॉर वीमेन स्टडीज़ रखा एंड आई वाज द फाउंडर डायरेक्टर फॉर दैट। उसके अंतर्गत हमने काफ़ी डिप्लोमास चलाए, हमने वीमेन स्टडीज़ को एज ए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया, हमने डिप्लोमा इन फैशन मर्केंटाइजिंग स्टार्ट किया, डिप्लोमा इन टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग स्टार्ट किया और साथ ही वीमेन स्टडीज़ की क्लासेस भी चालू करी और सरकार से पोस्टें लाकर उनका फंड लाके, तो ये सब महिलाओं के उत्थान के लिए शिक्षा के माध्यम से ही, क्योंकि घर बैठे अनुभव तो होता है लेकिन अनुभव में कूटमंडुता ज़्यादा होती है, हम नैरो माइंडेड हो जाते हैं, कुछ उसके बाहर सोचते ही नहीं है। लेकिन जब हम शिक्षा के लिए बाहर निकलते हैं, हम पुस्तकों का ज्ञान लेते हैं, हम अनुभव के द्वारा सीखते हैं, तो हम आगे बढ़ते बढ़ते बहुत कुछ सीख जाते हैं और जीवन में, व्यक्तित्व में बहुत परिवर्तन, परिमार्जन लाते हैं। और वो हुआ क्या, ये सब कोर्सेज चालू करने से हमारी लड़कियां इतनी कॉन्फिडेंट हुई कि आज वो लड़कों से डरती नहीं है, बल्कि सहपाठी के रूप में उन लड़के भी उनका सम्मान करते हैं और वो भी उनका सम्मान करते हैं। ये मैं अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि मानती हूँ। इस महिला वीमेन स्टडीज़ क्लब के माध्यम से हम सेंटर फॉर वीमेन स्टडीज़ लेके आए और वो आज बहुत बड़े रूप के अंतर्गत मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में कार्यरत है। इसके साथ ही साथ, क्योंकि मैं मनोविज्ञान की विद्यार्थी रही, मैं मनोवैज्ञानिक रही, मेरे विषय में मैंने पीएचडी कराई, शोध कार्य कराया, क्योंकि हमें टीचिंग करना था, रिसर्च करना था, एक्सटेंशन करना था, डॉक्यूमेंटेशन करना था। पुस्तकें भी लिखी मैंने स्वास्थ्य मनोविज्ञान पे, विमेन एम्पावरमेंट पे, जेंडर जस्टिस पे, करीब 10-11 किताबें मेरी प्रकाशित है। उसके अलावा मैंने जो अनुसंधान कार्य के अंतर्गत 75 लोगों को डॉक्टरेट की उपाधि से गौरवान्वित किया और इस 75 लोगों के जो पूरे विश्व में ये बच्चे कार्यरत हैं। मैं बताना चाहूँगी कि शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण बहुत ही महत्वपूर्ण है और उस महत्ता की वजह से आज बच्चे, चाहे वो सामाजिक संदर्भ हो, चाहे आध्यात्मिक संदर्भ हो, चाहे मेडिटेशन का हो, चाहे जस्टिस का हो, अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और वे प्रयास कर रहे हैं किस तरह से मनोवैज्ञानिक स्थिति को संवेशित किया जाए, संप्रेषित किया जाए और उसे बैलेंस की ओर अनुकूल ले जा सके। तो ये 75 विद्यार्थी जो डॉक्टर्स हैं, ये बहुत बड़े डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नॉट ओनली इन इंडिया, इट इज अब्रॉड, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, everywhere these students are working and they are working for the well-being of the society. In that stage, I have started an NGO called Academy of Wellbeing Society in 2007. Just I started to publish the research articles of those students who are working for their PhD work. होता क्या था कि हमारे बच्चे आज के समय में 2 publications are very important for awarding the PhD degree. बच्चे भेजते थे आर्टिकल, 2-2 साल तक उसका जवाब नहीं आता था। तो दैट insight God has given me. So I started this Academy of Wellbeing Society and in that we publishing a journal called a Journal of Wellbeing, जिसके अंतर्गत हमारे पास पूरे विश्व से जो मनोविज्ञान के हैं, जो भी शोधार्थी हैं, वो अपना पत्र भेजते हैं, मूलभूत आर्टिकल, ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल भेजते हैं, उनको हम एडिट करते हैं, हम उनका रिव्यू करते हैं, उसके बाद हम उनको प्रकाशित करते हैं। और मुझे खुशी है ये बताने में कि आज तक हम लोगों ने 15 वॉल्यूम्स, इट इज़ अ बाई-एनुअल जर्नल, 15 वॉल्यूम्स वी हैव पब्लिश्ड टिल डेट। दैट इज़ द बिगेस्ट सेटिस्फेक्शन नॉट ओनली फॉर मी, फॉर माई और एकेडमिक फ्रेटर्निटी। इसमें हमको मनोविज्ञान के ही नहीं लेते, सभी क्षेत्रों के जो कि खुशहाली को बढ़ाते हैं। आज की महती आवश्यकता समाज में खुशहाली लाना है, उसके संदर्भ में ये आर्टिकल्स जिनको हम प्रकाशित करते हैं। उसके साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में और भी हमने इनोवेशंस किए, हमने काफ़ी सेमिनार्स किए, चाहे वो इंटरनेशनल थे, इंटरनेशनल हमने सेमिनार किया विमेन वर्क एंड हेल्थ पर, जिसमें विभिन्न स्टेट से लोग आए काफ़ी मात्रा में,
इसके अलावा हमने अलग अलग सोशल इश्यूज़ को लेके, चाहे वो सती प्रथा थी उस पर भी हमने किया स्टेट लेवल का सेमिनार, चाहे सुसाइडल टेंडेंसीज थी, चाहे एल्डरली पर्सनैलिटी, मतलब इन ऑल रिस्पेक्ट हमने सारे सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेज, वर्कशॉप्स इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट लेवल, रीजनल लेवल हमने किए। ये भी शिक्षा के क्षेत्र में। इन सब को करने का हमारा उद्देश्य ये था कि कैसे हम शैक्षणिक गतिविधियों में विभिन्नता दे सकें। भारतीय सभ्यता और संस्कृति विभिन्नता में एकता है, तो मेरा प्रयास हमेशा रहा कि हम शिक्षा के माध्यम से कैसे विभिन्न आयामों के द्वारा, डिफरेंट डोमेन्स के द्वारा हम कैसे हमारी सांस्कृतिक धरोहर को आगे बढ़ा सकते हैं। इसी संदर्भ में कहना चाहूँगी कि मैं बहुत सारी केंद्रीय एजेंसियों से भी जुड़ी हुई हूँ, स्टेट लेवल की एजेंसियों से जुड़ी हुई हूँ। उनके माध्यम से जो भी मेरा अनुभव है, जो मेरा ज्ञान है, या जो मेरा विश्वास है, और जो मैंने कार्यकलाप किए हैं इस 40 साल की यात्रा के दौरान, उनका उपयोग होता है। और न केवल उदयपुर में, बाकी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, साउथ, सभी तरफ, बॉम्बे, गुजरात, सभी जगह मुझे बुलाया जाता है। और ये मेरी अनुभव का ही परिणाम है कि लोग मेरी इन चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, मुझे भागीदार बनाना चाहते हैं। और मैं बहुत सारी एथिकल कमेटीज़ में हूँ, इंटरनल कंप्लेंट कमेटीज़ में। एक मनोवैज्ञानिक होने के नाते हर क्षेत्र में मनोविज्ञान का प्रतिनिधित्व है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हमारी ये जो बायोलॉजिकल साइंस है या सोशल साइंस है, साइकोलॉजी इज द स्पाइन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, बिकॉज वी टॉक अबाउट द ह्यूमन बिहेवियर, एंड ह्यूमन बिहेवियर इज एवरीवेयर, चाहे साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, कहीं पे भी हो। सो बीइंग ए साइकोलॉजी स्टूडेंट, आई ट्राई टू गिव माई नॉलेज, I disperse my knowledge of psychology with my experience to the person who come for help. So I am working for the counseling and guidance also. Many people come for the counseling guidance, चाहे marital dispute की बात हो, चाहे mental health की बात हो, चाहे psychological disorders हो, चाहे psychiatric disorders हो, they come and get honorary. I provide the honorary services to them, and they are taking it. Not only this, in academics, in other field also I have worked. That is, we have organized the National Film Festival for Children and Young People in 1992. And then in 93 we have organized the 8th International Film Festival for Children and Young People. And I'm so happy that we were able to organize this international event by having 800 child in Udaipur. And Udaipur में माहौल था, एक त्योहार था, एक ऐसी सांस्कृतिक धरोहर यहाँ बना हुआ था। उसमें NCYP की चेयरमैन थी उस जमाने में डॉक्टर जया बच्चन, श्रीमती जया बच्चन, वो यहाँ आई। उनके साथ भूपेन हजारिका, गुलजार, मैनी पीपल केम फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री। एंड दैट टाइम सोनिया गांधी also visited, the governor and everyone. What I want to say here that I am so lucky, God has given me so power that I was able to organize not only international, national or state, all types of activity in every field, because my motto of life is to contribute for the people of the country. Whatever I can contribute, that is my biggest achievement, and I am happy by these achievements that I was able to work for, not only in the academics but in social field, in cultural field, in educational field, everywhere. That's why I am associated with the Maharana Mewar, many schools, Maharana Mewar Public School, other schools also. At the same time, I am related with the Pratap Smarak Samiti also since many years as a executive member of that society. So what I want to say that if you have a confidence in yourself, then you are able to deliberate your knowledge in different fields, and that different field gives you एक फूल का आकार। आपको जो एक माला बनते हैं एक एक फूल से, तो वो एक एक फूल अलग अलग फील्ड से थे, और इन फील्ड से एक जो माला बनी वो मेरी सार्थकता का प्रतीक है। और मैं उस कार्य को करने से अपने आप को प्रभु का आशीर्वाद मानती हूँ कि मुझे सामाजिक कार्य, मैं राजनीति से हमेशा दूर रही, मेरे पर हमेशा दबाव था कि मैं राजनीति को ज्वाइन करूँ, लेकिन क्योंकि मैं मूलतः विद्यार्थी थी मनोविज्ञान की, तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं किसी भी चीज़ में जाऊँ। मेरा उद्देश्य था जनमानस के लिए अगर मैं कुछ कर सकूँ, उनको केयर कर सकूँ, उनको काउंसिल कर सकूँ, उन्हें कुछ आगे बढ़ने की सलाह दे सकूँ, क्योंकि मेरा फील्ड था शिक्षा, लेकिन शिक्षा के साथ महिला उत्थान और युवा उत्थान, किशोर किशोरियों के लिए काम करने का मैंने प्रयास किया।
और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज बहुत से परिवार जो टूट रहे थे उनको टूटन से बचाया। मैंने बहुत सारे डिवोर्स केसेस को विड्रॉ करवाया, चाहे वो 25 साल की शादी थी या 30 साल की थी या 2 साल की थी या 1 साल की। उसके साथ ही साथ मैरिटल काउंसलिंग की, उनको कैसे अपना जीवन साथी चुनना है, जीवन साथी के साथ कैसे रहना है, ये सब भी मैंने मैरिटल काउंसलिंग करके भी किया। और मुझे खुशी है कि जो जो मेरे माध्यम से शादी ब्याह हुए हैं वो सब बहुत ही खुशहाली के जीवन जी रहे हैं और सदैव मुझे अपने आशीर्वाद से प्रशासित करते रहते हैं, मुझे धन्यवाद देते रहते हैं। गत दिनों में एक बहुत बड़ा पेंडेमिक आया, उसने न कोई छुआछात रखी, न कोई जातीय भेदभाव रखा। पूरे ग्लोब में, पूरे वर्ल्ड में इस पेंडेमिक ने सबकी जान ले ली। लेकिन इस जान के साथ ही साथ लोगों में इतनी कटुता भर दी, इतना सेल्फ सेंटर्ड कर दिया, इतना भयभीत कर दिया कि आधे लोग तो इसके डर के मारे मर गए। लेकिन हमें हर चीज के, जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ठीक उसी तरह पेंडेमिक को भी हमें 2 पहलुओं में देखना चाहिए। बीमारी थी, भयानक बीमारी थी, लेकिन जो व्यक्ति खूब संबल थे, स्ट्रॉन्ग थे, कॉन्फिडेंट थे, उन लोगों ने, और जो कार्य करते थे, दोज हु आर वर्किंग हार्ड, दे वर अवे फ्रॉम दिस पेंडेमिक, उन लोगों को कोरोना नहीं हुआ। आप देखिए गांव में लोग थे, उनको कोरोना नहीं हुआ। जो लोग दिन भर काम करते थे उनको कोरोना नहीं हुआ। लेकिन कोरोना किनको हुआ? जिनकी वीक पर्सनैलिटी थी। एल्डरली की बात अलग है, जो बुजुर्ग हैं उनकी बात अलग है, बुजुर्गों के साथ तो कोमॉर्बिड चीजें बहुत सारी हो जाती है। लेकिन यंगस्टर्स में जो कुछ हुआ वो उन लोगों के साथ हुआ जो कि शारीरिक रूप से कमजोर थे या मानसिक रूप से कमजोर थे, भयभीत थे, चिंतित थे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि सिक्के के 2 रूप होते हैं, ठीक उसी तरह से पेंडेमिक से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं तो ये कहना चाहूंगी, चाहे बच्चा था या बुजुर्ग था या बड़ा था या नौकरी पेशा था, औरत था या आदमी था, सभी लोगों को एक बहुत नई स्किल सीखने का मौका मिला। क्योंकि मैं मनोवैज्ञानिक हूँ, इस नाते मैं सोचती हूँ कि हर चीज में हमें उन तथ्यों को भी ढूंढना चाहिए जो हमें संबल प्रदान करते हैं, जो हमें सुसंगठित करते हैं, सुसमायोजित करते हैं। मैं तो कहूंगी कि पेंडेमिक ने कम से कम लोगों को घर में रहना सिखा दिया, क्योंकि लोगों को घर काटता था, तो अब घर में रहना सिखा दिया। जब घर में रहना सिखा दिया तो एक दूसरे को, लोगों को प्रॉब्लम्स भी हुई है। जो स्ट्रांग थे उनको प्रॉब्लम नहीं, जो वीक थे वो आपस में लड़ते झगड़ते थे। लेकिन जो स्ट्रांग थे उन लोगों ने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ लिखा। जो लिख पढ़ सकते थे उन्होंने कई किताबें लिखी, कई साहित्य लिखे, कई कहानियां लिखी, अपने तन मन को व्यस्त रखा, शारीरिक एक्सरसाइज करके और मन को सबके साथ बैठ के और मस्तिष्क को ऐसा साधन देना, ऐसा भोजन देना कि कुछ लिख पढ़ सकते थे। कविताएं लिखी लोगों ने, कहानियां लिखी, क्या नहीं किया। तो मैं ये मानती हूँ कि इस पेंडेमिक में लोगों का सृजन बहुत हुआ। सबसे बड़ी बात, पहले घर में रहना सीखा। दूसरी बात ये कि लोगों ने सृजन बहुत किया। तीसरी बात कि आध्यात्म की ओर गए, क्योंकि जब घर में रहे तो आपको, आदमी नीरस प्रवृत्ति में नहीं रह सकता, उसे विभिन्नता चाहिए। उस विभिन्नता के लिए जो भी उनका धर्म था, जिस धर्म के अनुसार जो भी उनकी धार्मिक पुस्तकें थी, उनको उन्होंने पढ़ा। और वो जो धार्मिक मूल्य थे, क्योंकि धर्म का मतलब ये नहीं है कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई। धर्म का मतलब है वो जिसको हम धारित करते हैं, और वो धारण हमें अनुशासन सिखाता है, और वो ही तो मानव धर्म है। सब धर्मों का संदेश मानव धर्म है। तो हम इस पेंडेमिक में उस मानव धर्म के प्रति भी संवेदनशील रहे। चौथी बात मैं कहना चाहूंगी कि हमारे लोगों ने उन स्किल्स को सीखा जिन स्किल्स के लिए कभी उन्होंने प्रयास नहीं किया था, बचपन से उन चीजों को नहीं सीखा। पांचवी बात कहूंगी, एक दूसरे का सम्मान करना सीखा, क्योंकि जब देखा घर में कि कितना विभिन्नताएं हैं, उन कार्यों को किसी ने क्या किया। तो छठा पॉइंट होगा सहभागिता। सद्भावना सीखी, लेकिन सहभागिता भी सीखी। और सहभागिता के साथ अगला पॉइंट मैं कहूंगी कि उन स्किल्स को सीखा, वो कौशल सीखे जो कभी उन्होंने सोचे भी नहीं थे। लोगों ने सिलाई करना सीखा, बुनाई करना सीखा, लोगों ने बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट बनाना सीखा, लोगों ने खाना बनाना सीखा, लोगों ने बर्तन मांजना सीखा। तो ये जो किचन स्किल्स थी, आदमियों ने भी सीखी। आप बताइए, इसमें सबसे बड़ा संदेश मेरा इस पैंडेमिक का है कि लोगों ने धर्म भाव का भेदभाव खत्म किया, लोगों ने
एक दूसरे के प्रति सद्भावना रखकर जो औरत का काम, आदमी का जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसको खत्म किया। ये बहुत बड़ा संदेश है कि जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, इट वॉज नेवर डिफाइंड इन एनी बुक, बट सोसाइटी हैज मेड दिस रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट पैंडेमिक हैज मेड इट क्लियर दैट एवरीबडी इज इक्वल, everybody can work. God has given power to work. God has given hands, God has given mind, God has given our sense organs. So this is in men and women. So gender discrimination मेरे हिसाब से मानना है ये कम हुआ। और सबसे लास्ट में कहना चाहूंगी, एक दूसरे को रेस्पेक्ट करना सीखा, एक दूसरे की एक्सेप्टेंस सीखी। दोज हु आर मेंटली वीक, उनकी मैं नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि कुछ एग्रेसिव हुए, कुछ ने मार पीट की, कुछ ने क्या किया और दुखी रहे, लेकिन दुखी रहे तो वो दुखी रहे तो उनका सत्यानाश हुआ ना। लेकिन इन जनरल में कहूँ, इन टोटलिटी इफ वी सी दैट यस, पैंडेमिक वाज अ नेगेटिव इंसिडेंस फॉर ऑल ऑफ अस, बट द पॉजिटिव पार्ट ऑफ दिस इज दैट it has given so much to us, the knowledge about the family, the group cohesiveness, cooperation, competition, creativity, all these things were there, and I want that it should be continue in the next 2021, because 21 साल वैसे भी हमारे समाज के अंतर्गत एक शगुन होता है, 21 रुपए का शगुन होता है। मैं तो बहुत ही पॉजिटिव माइंडेड हूँ, प्रोडक्टिव माइंडेड हूँ। मैं तो ये कहूँगी 2021 हम सब के लिए सुखद, सहज, सारगर्भित और संतोषप्रद हो, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। और 21 का जो आधार मैंने माना कि हमारी संस्कृति में 21 एक शगुन है, उसी तरह से जो हमने पैंडेमिक में सीखा है वो आगे भी उस बुराई को खत्म करके अच्छाई की ओर जाने का समय आया है, और हम अच्छे इंसान बने, अच्छे पति पत्नी बने, अच्छे बेटे बेटी बने, अच्छे, क्योंकि दादा दादी नाना नानी बड़े लोग हैं, उनको हम सम्मान दे सकें। आज के युवा वर्ग में बड़ों के प्रति जो सम्मान खत्म हुआ, वो सम्मान इस पैंडेमिक के दौरान उन्होंने अर्जित किया, और उसका दोहन 2021 में भी हो, ये मेरी शुभकामनाएं। मैं जीवन यात्रा में सब कुछ अनुशासित रही, लेकिन अनुशासन के साथ ही साथ अपनी बोर्डम का तो मेरे सवाल ही नहीं कि बोर्डम आई हो, लेकिन जीवन में मैंने नृत्य गायन को बहुत पसंद किया, और उस नृत्य में खास तौर से मैं लोक संस्कृति की ज़्यादा उपासक रही हूँ। उस लोक संस्कृति में मैंने डांस भी गाया, गाना भी किया और आनंद लिया, क्योंकि आनंद जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर जीवन को जीना सीखना है तो उसमें सारे कंपोनेंट्स डालने होंगे। जैसे हम खाने में सब मिर्च मसाले डालते हैं, उसी तरह जीवन को जिंदा दिली से जीने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। हमें डांस करना पड़ता है, हमें गाना गाना पड़ता है, नाचना पड़ता है, क्योंकि यही तो चीज़ें हैं जो हमारी जो सेंस ऑर्गन्स है उनको प्रफुल्लित करती, उनको एनहांस करती है। हमारा जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है उसको बढ़ाता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म में जो फ्लो ऑफ ब्लड है दैट शुड बी देयर। अगर वो नहीं है तो हमारी तबीयत खराब होगी। तो ये नाच गाना बोलना ये सब हमारे क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि जो भी बीमार हैं उनको सारों को मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं। व्हाट आर दीज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स? दे आर सफरिंग फ्रॉम थायराइड, they are suffering from BP, they are suffering from diabetes. There are many metabolic disorders. So to control these metabolic disorders, हमें physical exercise. So dancing is a very good physical exercise. We should dance and we should give God को, भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, गाना चाहिए, क्योंकि संगीत, नृत्य, नाटक और डांस एक ऐसी विधा है जो इंसान किसी भी गम में बैठा हो उसे खुशी देती है, उसके अंतः को उजागर करती है, उसे निकालती है और निकाल के सबको खुशियां बांटती है। मेरा ध्येय जीवन में खुशियां लाना है, किसी को परेशान नहीं होने देना, किसी की परेशानी को सुनकर उसके इमोशनल रिलीज कराकर उसे नॉर्मल करें। सामान्यतः मेरे पास जो भी लोग आते हैं वो परेशान आते हैं, लेकिन जब यहाँ से जाते हैं तो उनका चेहरा हंसता हुआ होता है, नाचता हुआ होता है, डांस करता हुआ होता है। मैं लोक संस्कृति की उपासक हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि चैरिटी बिगन्स फ्रॉम होम, कि अगर हम घर से सक्षम होंगे, घर से जिन आदतों को सीखेंगे, घर के वातावरण को समझेंगे, तो मैं क्योंकि राजस्थानी लोक संस्कृति से हूँ और अब मैं मेवाड़ में आ गई हूँ, तो मैं एक मेवाड़ी गाना सुनाना पसंद करूँगी, बहुत सारांश में। मारो वीर शिरोमणि देश मन प्यारो लागे सा, मेवाड़ मारो देश मन प्यारो लागे सा, कल कल
करती नदियां बहवे बेड़च और बनास। कल कल करती नदियां बहवे बेड़च और बनास। पीछो लारी देख छटा माने आवे घणो आनंद माने प्यारो लागे सा। मारो जंगल मंगल देश माने प्यारो लागे सा। ऊंचा ऊंचा मगरा ऊपर ऊंचो गढ़ चित्तौड़। ऊंचा ऊंचा मगरा ऊपर ऊंचो गढ़ चित्तौड़। और जगतरी गढ़िया सारी ओ सब रो सिर मोर माने प्यारो लागे सा। मारो वीर शिरोमणि देश माने प्यारो लागे सा। श्री एक लिंग जी श्री श्रीनाथ जी केसरी या गढ़बो। श्री एक लिंग जी श्री श्रीनाथ जी केसरिया गढ़मो। सारी जगतरी गढ़िया सारी ओ सब रो सिर मोर माने प्यारो लागे सा। मारो वीर शिरोमणि देश माने प्यारो लागे सा। आज जो कुछ मैंने बातें करी है आपसे वो जीवन का यथार्थ है, सत्यता है। अगर हम उन बातों की ओर अग्रसर हों, उनको हम देखें तो ये देखना चाहिए कि जीवन जीना एक कला है और उस कला के लिए हमें बहुत कुछ सीखना पड़ता है और सिखाना पड़ता है। और सीखने में अनुभवों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। उसके लिए आवश्यकता है कि हम अपने दिमाग और हमारी ज्ञानेंद्रियों को खुली रखें। अगर हम में ओपननेस होगी, ग्रहण करने की क्षमता होगी तो हम आगे बढ़ सकेंगे। अगर हम कूप मंडूक होकर अपने में ही रहेंगे तो हम कुछ नहीं सीखते। जीवन इंसान एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी होने के नाते वह स्वयं ही नहीं जी सकता, उसे अन्यों के साथ अपना जीवन निर्वाह करना पड़ता है। भगवान ने भी अकेला तो भेजा है लेकिन साथ के लिए समाज दिया है, परिवार दिया है। इसलिए मेरा आप सबसे यह निवेदन है, जो भी इस वक्तव्य को सुन रहा है, जो इस मेरी कहानी को, छोटी सी कहानी को सुन रहा है, मैं तो ये कहना चाहूंगी, भाइयों और बहनों, प्यारे बच्चों, आप सब लोग अपने आप को समझकर, अपने स्वयं को समझकर अन्यों के साथ समन्वय स्थापित करने का प्रयास करें। जीवन में कुछ भी मुश्किल नहीं है। हम सब कुछ सीख सकते हैं, हम सब कुछ सिखा सकते हैं, लेकिन जब तक हमारी इच्छा शक्ति उस सीखने को नहीं होगी तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जीवन में सफलता प्राप्त करना है, आओ हम सब मिलकर एक सामान्य स्थल पर बैठकर ये सोचें कि हमें क्या करना है, हमें किसके लिए करना है। क्योंकि भगवान ने आपको इस दुनिया में भेजा है तो केवल अपने लिए नहीं भेजा, समाज के लिए काम करने के लिए भेजा, आपको उद्योगों के लिए काम करने के लिए भेजा, आपको शिक्षालय की काम करने के लिए भेजा, आपको हॉस्पिटल में काम करने के लिए भेजा है, आपको सुरक्षा का काम करने, बहुत जीवन को जीने की कला के सभी संदर्भों में आपको भेजा है। तो आओ हम सब मिलकर हम इन सब कार्यों की ओर प्रेरित हों, उनके सभी सदस्यों के प्रति भी हम संवेदनशील हों और साथ ही साथ हम लोगों के लिए ऐसी भावना रखें, सकारात्मक भावना रखें। वो सकारात्मक भावना हमें उत्पादक बनाती है। हमें कुछ देने का, लेना जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, देने का भाव होना चाहिए। देने के भाव में हमें तन, मन और धन, इन तीनों में समन्वय स्थापित करेगा। तन को स्वस्थ रखना है, इसलिए हमें स्वास्थ्य की ओर ध्यान देना है। मन को स्वस्थ रखने के लिए हमें रिक्रिएशनल एक्टिविटीज की ओर ध्यान देना है कि हम कैसे अपने मन को खुश रख सकते हैं। ऐसे कौन से आयाम है जो हमें सुरक्षा, हमें मन को स्वच्छता प्रदान करता है, हमें संवेदनशील बनाता है। हमें चाहे गाना बजाना, खेलना कूदना, नाटक, जो भी कुछ संभव हो, तो हमें मन को खुश करने के लिए काम करना होगा। और धन के लिए, क्योंकि धन वो धुरी है जिस पे सारा विश्व घूमता है। धन हमें अर्जित करना पड़ेगा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। तो उसके लिए हमें धन अर्जित करने के लिए भी हम उस संस्थान के मूल्यों की ओर अग्रसित हों,
हम उस कार्यस्थल के मूल्यों की ओर अग्रसित हों जिसके लिए वो कार्यस्थल बनाया गया है। अगर हम उनके अनुकूल अपने आप को परिवर्तित कर पाते हैं, परिमार्जित कर पाते हैं, तो हम उनको भी अच्छा संदेश देंगे और अपने स्वयं को भी शांत कर सकेंगे। जीवन में खुशियां लाना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। जीवन में तन मन धन में समन्वय लाना हमारा उद्देश्य होना चाहिए, ताकि हम एक सार्थक इंसान बन सकें, उत्पादक इंसान बने। दुनिया में केवल हम नाचने कूदने खाने के लिए नहीं आए, हम सब कुछ करने के लिए आए। तन मन धन मैंने इसीलिए बोला है। इन दिनों में समन्वय स्थापित करो और जीवन को आगे बढ़ाते रहो। जीवन जीने की कला को अंगीकृत करो और उत्थान करो, अपना भी, अपने परिवार का, अपने समाज का और अपने उत्पादक क्षेत्र का, जहां आप नौकरी करते हैं उनके प्रति भी आप संवेदनशील रहें। संवेदनशीलता हमारा आधार स्तंभ होना चाहिए। स्व नियंत्रण हमारा आधार स्तंभ होना चाहिए। हम दूसरों के प्रति समर्पित हों, ये हमारा आयाम होना चाहिए। तभी तो हम समायोजन ही जीवन है, जीवन ही समायोजन की बात कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।